بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. عید کا تیسرا دن ہے, ہم ریڈیو پر بیٹھے ہیں اور ریڈیو پر آج 6 سے 9 ہمارا پروگرام تھا. ہمارے ساتھ کامران افضل صاحب ہیں, بلال صاحب ہیں اور 19 صاحب جو ترقی کر کے 19-20 ہو گئے یہاں سامنے آ رہے ہیں, تھوڑا سا شرما رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. تو وہ پروگرام کسی وجہ سے جو ہے اب کامران افضل صاحب کی ذمہ داری ہے کہ 9 سے 12 تک کریں گے. تو ہم نے کہا تھوڑا سا اپنا تمباکو بھیج لیتے ہیں, جو دال میں کھانا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو ہمارے ریڈیو کے وہ دوست ہیں جس کی وجہ سے سچی بات ہے آپ کے پاس ہماری آواز آتی ہے, کچھ سہولتیں ہوتی ہیں بلال اور 19 بھائی. تو میں نے کہا کیونکہ عید پر ایسے ہی ہوتا ہے, تھوڑا سا ان سے بھی جو ہے گپ شپ کی کوشش میں کہہ رہا ہوں. یہ پھر اب آگے سے مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ بولنا تو نہیں پڑے گا, تو ریڈیو پہ تو ویسے بولنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا کیمرہ ہے تو چلے بولنے کا کام. کامران افضل صاحب ہے ساتھ, تو ہمارے بہت ہی پیارے, بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اچھے آرجے ہیں ریڈیو کی, ریڈیو آواز FM 107 کی جان ہے, تو وہ پورا کر لیں گے. اور میرے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے, انتہائی خاموش طبع آدمی ہوں. تو کامران افضل صاحب یہ بتائیں آپ کی عید کیسے گزری؟ السلام علیکم اینڈ عید مبارک آپ جی, بھائیوں کو بھی. اور عید الحمدللہ آج تیسرا دن ہے, اور عید کے پہلے جو تیسرا دن بلکہ گزر چکا ہے, تیسری آج تو رات ہے. جی تو تینوں دن الحمدللہ بہت اچھے گزرے ہیں, دوسرا دن چھوڑ کے. پہلے دن بھی مصروفیت میں گزرا ہے, آج کا بھی مصروفیت میں گزرا ہے, کل کا دن صرف جو ہے نا وہ ریسٹ میں گزرا ہے. جیسا کہ یہ ادھر ہمارے یہاں ہوتا ہے, موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ عید کے بعد دوسرا کام لڑکوں کا سونے والے ہی ہوتا ہے, اگر کوئی گھومنے پھرنے کا پلان نہ ہو تو. ایسے ہی میرا بھی پہلا دن تو ایسے ہی تھا, فیملی کے ساتھ ہم لوگ گئے ہوئے تھے, تو مصروفیت میں گزرا. کل کا سارا دن اور ساری رات سونے میں گزرا, آج کا بھی آدھا دن ایون سونے میں ہی گزرا. پچھلا آدھا دن جو تھا وہ کچھ چھوٹے موٹے جو کام تھے وہ کیے ہیں. ابھی یہاں پہ تشریف لے آئے, ابھی کال آئی ہے کہ جی آپ 6 بجے نہ پروگرام کریں, 9 بجے کریں, کیونکہ 9 سے 12 طاہا صاحب نے آنا تھا, وہ بھی چھوٹی پہ ہے کہ ہو گیا وہ بھی. تو ابھی 9 سے 12 پھر آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ نے ساتھ دیا تو اگر نکل گیا تو پھر آپ کی مرضی ہے. نہیں, میں دل تو پورا تھا لیکن ظاہر بات آپ کے سامنے کال آئی ہے تو کچھ مہمان آنے ہیں, اس لیے واپس جانا ہے, تو آپ نے بولنا تو نہیں ہے. لیکن ایک دن چھٹی تھی. جی, عید کیسی گزری؟ اچھا, تو ایک دن کی چھٹی کی کمی محسوس ہوئی یا نہیں؟ اچھا, یہاں پہ کام کرتے ہوئے چھٹی کا دودھ یاد آتا نہیں آتا؟ نہیں, مجھے ایک چھٹی تھی لیکن میں نے کی 3 ہے. اچھا, آپ نے 3 کی, جا راضیاں انیہ ہو یہاں سونے دیا تو موجہ. اچھا, اور نیل صاحب پہلے دن آ گئے تھے دوسرے دن؟ میں دوسرے دن آ گیا. اچھا, ایک ہی چھٹی کی. اچھا, تو آپ کے بھائی کا جو آپ کے برابر بیٹا ہوا ہے تو اس کی بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ کے جتنے ہی ہیں؟ نہیں, میرے اتنا نہیں ہے. اچھا, مجھ سے تقریباً 2 سال چھوٹا ہے. 2 سال چھوٹا ہے جو آپ کے بھائی کو بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے. ہاں, بیٹا 2 سال چھوٹا ہے, آپ کا بھائی 2 سال چھوٹا ہے آپ سے. وہ میں مذاق کر رہا ہوں, تو آپ نے سوال ہی ایسا کیا تو میں نے بھی تھوڑا مذاق. اچھا, آپ مذاق کر رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے؟ نہیں, وہ مذاق نہیں ہے. اچھا, مذاق یہ ہے کہ جو آپ نے کہا وہ آپ سنتے ہیں, جتنا ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں. اچھا, تو اس سے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 22 سال. 22 سال ہے, تو اس کا جواب سمپلی یہی بنتا تھا کہ وہ مجھ سے 21 سال اور 11 مہینے چھوٹا ہے. وہ چلے, وہ میں نے تھوڑا مذاق کا مذاق اور حقیقت کی حقیقت. نہیں, یہ تو زبردست بات ہے نا, بہت اچھی بات ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. دیکھیں یہاں پہ آپ مذاق کریں گے تو اور زیادہ فائدے میں رہیں گے, آپ کا نام اسی مذاق سے نکلے گا, پتہ چلے گا کہ 19 کیا نام ہے, 19 اردو میں 19-20. میں اچھا, جب پہلے دن آیا دوسرے دن ہم ملے تو رات کو بھی گپ لگا رہے تھے کہ جب رمضان تھا تو 12 بجے کے بعد ہم یہاں سے نکلتے تھے, تو 19 کو میں نے ایسے دروازہ کھولا تو میں نے کہا 19, ساتھ ہی میرے منہ میں آیا 20, تو اس دن سے 19-20 چل گیا. پھر اس کی آنکھ کھلتی نہیں تھی 12 بجے کے بعد, یہ ایسے پتلی گلی سے نکل گیا, دوسری سائڈ پہ زیادہ تر سو جاتا تھا. وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ نا رمضان کی نا بڑی مصروفیات ہوتی تھی. جی, صبح 3 بجے آن کرنا ہوتا تھا, تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے. نہیں, وہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی, آدھا گھنٹہ ہی سو پاتا تھا صرف یہاں. ایسے ہی, اگر آپ کے ساتھ جاتے تو پھر وہ بھی آدھا گھنٹہ بھی گیا تھا. جی بالکل ایسے ہی. یہ بھی دیکھیں نا, وہ بھی تھوڑا کرنا ہوتا ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں, آپ جدھر چاہیں کیونکہ آپ 12 بجے کرنا ہے اور 6 بجے آن کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میرے نا مائنڈ میں ایک بات گھوم رہی تھی, آپ کے جو رمضان والے پروگرام گزرے نا ان کو لے کر. ہم آرٹسٹ کا موسٹلی آپ کو پتہ یہی ہوتا ہے کہ ملاقات ایسی ہونی ہوتی ہے کہ جی کم و شو وقت ہوگی
अदरवाइज महीने महीने 6 महीने ऐसे गुजर ही। जाते हैं, हमारी मुलाकात नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों को ये होता है कि ये तो 24 घंटे एक दूसरे के एक साथ दूसरे रात साथ में होते हैं, होते हैं, इकट्ठे एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 6 महीने एक दूसरे से कभी बिल्कुल मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई। तो अभी आज आपसे कुदरती मुलाकात हो गई है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि रमजान में आप जो पिज़्ज़ा के साथ सहरी कर रहे थे, जी वो आइडिया किसका था और किधर से वो लिया था? अच्छा पिज़्ज़ा के बिल्कुल साथ कौन सहरी करता जी है? वो बिल्कुल मेरा आइडिया नहीं था। अच्छा। वो आइडिया सारा जो ये जो हमारे काम करने वाले हैं ना रेडियो पे, मतलब राना उमर अशरफ, आफत शर्जील, अलियान गोंदल और जाहिर बात है उसमें बिलाल और मीस को बेशक टीम तो ये 20 भी थे, ठीक है। ज्यादातर मतलब जो काम भी था। है मैं काम थे, लेकिन ये आइडिया इनके ही थे मेरा सहरी का, क्योंकि अब जिस जगह गए जाहिर बात है ये रात को यहाँ पे सोते हैं, तो इन्होंने जो खाना होता है वो खाना होता है अक्सर वहाँ से लियान या ये करके एक दो दफा आपने खाया कि आपने नहीं खाया एक दफा पराठा। तो मैं यहाँ पे यहाँ क्योंकि आपको पता है कि जो होटल वाले लोग हैं सर यहाँ सॉरी मैं फिर होटल कह देता हूँ, यहाँ कहते हैं लेकिन बेसिक तो रेस्टोरेंट है, होटल वो होता है, यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर होते हैं। तो ज़िला मंडी के क्योंकि जो रेस्टोरेंट की यूनियन है वैसे मैं उसका सरपरस्त आला भी हूँ, तो सब दोस्त हैं। तो मतलब जिस जगह जाना उन्होंने कहा पराठा को, मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है भाई, मैंने आपसे थोड़ी देर बाद रात को चले 3 बजे वापस मोंग चले जाना है, तो पंजाबी चाहते ना ताज़ा दूध या रिड़के होगा करे दी घर का आटा है घर का घी है, तो मैंने नहीं, मैं तो इसलिए खाता ही नहीं था। मतलब ये 1 महीने मौका मिल नहीं जाए वो तो ठीक है, वो आप दाल नहीं से- खाते थे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सहरी में पिज़्ज़ा कौन खाता है? वही पिज़्ज़े के कह साथ रहा सहरी कौन करता है? सर यही तो अंदाज है, फिर स्टाइल है ना, हमने तो किसका? जिंदगी में हमेशा वो काम किसका किया स्टाइल है है जो ये? कोई और नहीं करता। किसका स्टाइल है ये मेरा तो अभी शुरू आप से कह रहे हैं स्टाइल कि मेरा आइडिया नहीं था, अभी कह रहे हैं हाँ मेरा नहीं नहीं स्टाइल मेरा है। आइडिया नहीं था ना, बिल्कुल आइडिया नहीं था। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लेकिन स्टाइल आपकी है लेकिन आइडिया आपका नहीं है। बन गया ना, मतलब आइडिया आप भी मुझे देते हैं। बात एक होता है आइडिया देना, आपके जहन में बेशुमार आइडिया आते हैं, मतलब आपके जहन में आइडिया आता है या मैं फूल दो बना दूँ ये बना दूँ कपड़ों पे, तो अगले दिन आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप नहीं पहनेंगे ज्यादातर। तो मुझे जब बताएंगे तो ये उल्टा काम होगा, मैं तो पहन लूंगा। अच्छा, पिज़्ज़े तो के साथ आप मतलब- सहरी की सहरी टाइम पिज़्ज़ा खाया ना? उससे बिल्कुल ऐसे ही है, सहरी की और उससे तंग भी हुए करता तो वो रोज़ा वो पूछना चाह रहा था कि मैं वो रोज़ा फिर आपका कैसा गुजरा, क्योंकि वो तो जारी बात है आपको मिनट मिनट बाद प्यास लगी होगी। नहीं उसकी एक दो वजह है, वो तो आप मेरी भी अगर आप ये सारे आए नहीं तो इनसे पूछते हैं। इनसे भी पूछेंगे, आप बताए ना, वो तो वैसे ही कह रहे थे आपको सवाल जवाब नहीं करना। डॉक्टर ताज साहब होते वो बता देते, मैं ही बता देता हूँ। वो तो ये नहीं आपको इन्होंने- मेरा पता नहीं है ना, इसलिए मेरी सेहत पे उसका असर इसलिए नहीं होना था कि गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो रमजान हो, मैं सुबह 7-8 बजे मैंने सोना होता है, शाम को उठना होता है, तो मुझे प्यास कहाँ से सहरी लगेगी? टाइम पिज़्ज़ा खा के आप जाके सो गए, सोया तो लेकिन 7-8 बजे आठ थे, बजे मेरी आदत ये सुबह 8 बजे फिर आप जाके मगर टाइम उठे, से। जी आपके दिन अच्छा जी, इसलिए मुझे वो महसूस उस तरह नहीं इन दोनों में से किसने खाया था? तीसरे वाले दिन में तो भी, और वो दूसरा जो था वहाँ पे वो जिस दिन फास्ट फूड थे पता नहीं। वो उस दिन आप पिज्जा वाले दोनों चक्रों में नहीं, फालिया में तो थे ना आप, लेकिन फालिया तो पिज्जा था ही नहीं। फालिया में पिज्जा नहीं था, फालिया में एक और चीज़ मिस हुई थी। अच्छा वाकया ही मुझे याद नहीं रहा, मुझे पता नहीं चला, हो जाता है आप सबके नाम के साथ थोड़ा थोड़ा मैं टच देता गया, लेकिन आदर चीमा का मैं नाम ही भूल गया उसको। ये वहाँ पे विश्वास घाट के या पाप के वो मुझसे हुआ था। तो खैर भी ये तो इस तरह की हमारी गपशप जो है वो लग रही है। और तो बात अभी तो आप सच कह है। रहे थे कि वो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग तंग भी हुए हैं, तो कौन तंग हुआ था? फिर आप तो 100 के दिन गुजार दिया आपने। नहीं तंग उनका वही मकसद है जो आप सवाल उठा रहे हैं, उनमें जान है ना, प्यास लगना या उसकी खुराक सख्त होना, ये वो। फिर सच्ची बात है घर जाकर वैसे भी कुछ खाने नहीं हुआ, तो वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ था पोस्ट देखेंगे फेसबुक पे, मैंने उधर भी पूछा था कि जी, ये जी। कौन सी सहरी हो रही है जो पिज़्ज़े के साथ आप लोग खाते हैं? 3 दफा इनको रोका, यहाँ से जब ताक साहब को दोबारा निकाला है ना घर से, तो मैं इनको कह रहा हूँ जिस तरफ आपका दिल है उस तरफ चलते हैं। अच्छा बात खोलते हैं थोड़ी सी हर जगह की, इनको तो पता है। तो वहाँ पे होता ये था कि मेरे दोस्त है बेशुमार, क्योंकि अब मेरा प्रोग्राम है यहाँ से भागने का, मुझे कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं, तो अब थोड़ा सा खुल जाते हैं। तो हम ज़्यादातर जिस जगह पे जाते थे वो खाना खाते थे, तो उस दिन इनको कहा था जिस जगह पर आपका दिल है खा लो। लेकिन बाद में तय ये हुआ था कि आज मैं डालूंगा कि रानी उमर अशरफ और दूसरा अलियान, इन दोनों ने दावत दी है। एक दिन पता नहीं किस पे डाला था, एक दिन किसी पे डाला था, क्योंकि वरना जिस दोस्त से सुनना था ना उसने कहा था प्राई उन्हें दावत दी थी आसानी पे। ठीक तो है। हम ये भी साथ गेम खेलते रहे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप कौन सा हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं? 6 महीने बाद फिर आ जाना। तो हाँ, जो नहीं, लोग वो- ये पावर एंड टूर सर- देख रहे हैं सर वो ये वीडियो सेव रखेंगे अपने पास। सर आप यकीन करें भूल जाए,
पाकिस्तान में साबित हो चुका है, हम जो पाकिस्तानी सॉरी कौम तो नहीं है, झूम है, मुझसे गुनाह जानना हो जाए कि मैं अपने आप को कौन कहूँ। आप सोशल मीडिया की दुनिया है सर, इतनी फास्ट दुनिया है, यहाँ जितना बड़ा वाक़या हो जाए, सानिया हो जाए, तीसरे दिन नया वाक़या आता है, पीछे वाला हम भूल जाते हैं तो 6 महीने तो बाद ही पहुँच जाता है। खाने वाले मामलात में सर खाने वाले वो किसी को को याद रहते हैं, खाने वाले मामलात ही भूलते हैं। देखिए ना, खाना 3 टाइम खाते हैं, खाना तो बोलता है कि यार चलो सुबह खा लिया था तो शाम को नहीं खाता। नहीं, वो जिसको याद होगा फ्री ना, वाला जो होता है वो तो कोई भी सर नहीं जिसको याद होगा ना 6 महीने बाद, उतने लोग कवर किए जा सकते हैं, जो इकट्ठा हो जाए उतना तो चलना ही है ना, वो नो प्रॉब्लम। चले जी, जी। देखते हैं आपकी लक या फिर लोगों की लक। जी जी, अल्लाह ताला ने जी लोगों की भी, मैं समझता हूँ लोगों से ज़्यादा मेरी लक है। अच्छा अभी आप आपसे कहना एक मिनट माज़रत बात काट रहा हूँ, अगर खुदा ताला हमें इस काबिल समझे, देखिए देने की सिफत उस ज़ात को आती है। अल्लाह ताला हमें अगर इस तरह का मौका देता है कि हम दोस्तों में बैठकर कुछ खर्च कर सकें, हमें तो फीक दे, इससे बड़ा आपकी बात और क्या अल्लाह ताला का बड़ी बात हम आपने दे- की है, क्योंकि अभी मैं खुद आ रहा था ना रास्ते जी, में, जी। तो कुदरती यही आप वाली बात मेरे माइंड में ना घूम रही थी, और उस अच्छा। टाइम भी मैं ये दुआ कर रहा था। कहते हैं कि सफर में जो दुआ होती है ना कबूल बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। कबूलियत का टाइम होता है। मैं उस टाइम भी यही दुआ कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो हमेशा देने वालों में रखे, लेने वालों में ना रखे। ऐसे ही है। तो आपने बात बड़ी ठीक की है कि मतलब अगर किसी के वसीला बनते हैं या हाँ। किसी के लिए खाने का वसीला बन रहे हैं, तो इससे बड़ी और कौन सी बात है। मतलब देखो ना, यार दोस्तों में एक अच्छी चीज़ है ना, अब ऐसा मौका मिले तो बिल्कुल। सबसे पहले तो होना ही ये चाहिए, हमारी तो ख्वाहिश ही ये होती है कि यार दोस्तों में हो तो मतलब ये परवाह ही अब हो। वैसे भी कहते हैं ना सदका करीबी लोगों को देना चाहिए। जी जी, वो सदके से मुझे याद यार आया, दोस्तों से बढ़ के सदके से किसी मुझे को याद आया, अगर आप तीनों गुस्सा ना खाएं, वैसे आप तीनों पे बात नहीं, आप शर्जील यहाँ पर होता तो बड़ा मज़ा आना था, क्योंकि मुझे आप तीनों की दाढ़ियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन आप दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। तो वो कहते हैं जो सदका है ना वो हर बला को खा जाता है, और जो मौलवी है वो सदके को भी खा जाता है। तो अच्छा, ये जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह कह रहे थे, लेकिन हकीकत है 19-20 आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और खुल कर दिए और मजाक करने की कोशिश की, जिस तरह संजीदा रहते और मुझे तो यहाँ पे जा पाए एक छोटे से अफजल रामपाल मुझे बने हुए नज़र आते थे। तो लेकिन चलिए, इसका मतलब वो रोज़ों में आपकी और पर्सनालिटी थी, शख्सियत थी, उसके बाद थोड़ा सा आप खुल कर और सामने आए हैं। वो रमजान की उस टाइम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और बेहतरी आएगी। वेरी गुड। वैसे भी आपको पता है माहौल का असर अच्छा माहौल खासा का होता है। अच्छा असर होता है। तो उधर वो ये बात है ना कि हम गाँव के जो लोग होते हैं ना खुले माहौल के आते हैं, तो जब शहर में आते हैं तो थोड़ा बोर्ड सा बन जाता है। नहीं, इस बोझ का जो हाल है, मैं ताज़ा आपको कहता हूँ, ऊपर सीढ़ियाँ नहीं, आप छत पे चढ़ गए। ये हो सकता है। और बल्कि छत पे नहीं, हमारा ऊपर टावर है, खंभ है, उस पे तो चढ़ जाए तो फिर वो भी और 40 फीट का तो वो भी मेरे घर में आया है। हाँ। और खंभे पे चढ़ के ना ऊपर जा करके चक्की पीसे, चक्की पीसे, चक्की पीसे, मौसी मैं ऊपर से गिरकर जान दे दूंगा। सईदे वालों, सईदे ही है ना पेंट है, अब देखो देखे यार सईदे नाल हमारे वो आप नाराज रहते हैं सिकंदर गोंदल साहब, कुर्तुबा रेस्टोरेंट बार्सिलोना स्पेन, ये देखें आपके गांव का बच्चा हमारे साथ है। ठीक हो गया जी, सिकंदर गोंदल साहब याद आ गए। और कोई अच्छा अभी आपका आज ये लास्ट प्रोग्राम है, आप फिर जा रहे हैं, तो फिर जी। वापसी कोई तवक्को है आपकी कि कब तक? जी, मैं पिछले 10 सालों से तो कोशिश करता हूँ, इस दफ़ा साल रह रहा है, लेकिन अब तक मैं नाकाम रहा हूँ। 3-4 महीने के बाद वापस आ जाता हूँ। अच्छा वापस आने की वजह क्या है, उधर क्यों नहीं दिल लगता आपका? नहीं, वैसे तो अब मैं क्या कहूँ कि जब इनकी उम्र से भी छोटा था तो तब से बाहर हूँ, मतलब कह रहे बचपन के थोड़ी देर बाद जवानी सारी तो बाहर लेकिन ना यहाँ पे 9 साल के बाद हम वापस आए हैं। 9 साल के बाद जो है वापस भी आए हैं अपने। लेकिन अब आखिर में आकर वो थोड़ा सा, लेकिन आप तो सेटिंग करते हैं। वाइंड अप करें, 10 मिनट रह गए। जी जी, 10 मिनट रह गए हैं, तो मेरे ख्याल में वाइड अप ही चल रहा है। तो जनाब आखिर में आपने देखा, हमने कोशिश की, चंद दोस्त बैठे, कुछ गपशप लगाई, हम आपका हिस्सा बने, आप हमारा हिस्सा बने, और पाकिस्तान के साथ साथ भारत जो से हमसे भी बात हुई, आप तकलीफ नहीं काफ़ी। अल्लाह हाफिज़ गुलाम भाई, अल्लाह आप हाफिज़। अभी शो करना है 9 बजे स्टार्ट।